Thanks everyone. I wish you all a very good health. Today we shall discuss part of speech pronouns. So let's start quickly, but before that, let's see its SLOs. By the end of the lecture, you will be able to define the definition of pronoun, its all kinds in detail, and their usage in daily routine. So here we go. What is a pronoun? Words which are used in place of noun are called pronouns. Look at this example. Danish was going to library. He was going to take a book. Here, he is a pronoun which is used in place of noun, Danish. Look at here. This is Danish is a noun and we replace this noun with he. He is a pronoun. A pronoun can replace a noun or another pronoun. You use pronouns like he, which, none and you to make your sentence less awkward and less repetitive. मीन्स हमें ये रेपिटेशन से बचाते हैं जब अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर हर सेंटेंस में अगर नाउन यूज़ करते जाएंगे तो वो ऑकवर्ड लगते हैं, अच्छे नहीं लगते और ये बार बार रेपिटेशन होती है. सो इसलिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. हम नाउन फर्स्ट अगर सेंटेंस में हमने यूज़ किया है देन हम उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो ये हमें रेपिटेशन से बचाते हैं. प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. ये नाउन की प्लेस लेते हैं. इनको फॉर एग्जाम्पल दे और दैम, ही और हिम, शी और हर, इट एंड वी और अस इफ इट इंक्लूड्स यू. Now we will discuss types of pronoun. We have the kinds of pronoun or types of pronoun. First of all, we have personal pronouns, possessive, demonstrative, reflexive, emphatic or intensive pronoun. Then we have interrogative pronouns, relative pronouns, distributive and indefinite pronouns. Now we will discuss them in detail one by one. First of all, we have personal pronouns. It is defines as a pronoun that refers to a particular person or a group or a thing. Here are some personal pronouns. For example, I, me, mine, we, us, etc. Means we use personal pronoun for the first person, the person who is speaking. Right now, I am speaking to you, so I is a personal pronoun. This mobile is mine. This is, so here mine, we are using I, mine, we, us and me, etc. हम पर्सनल अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच रिप्लेसेस नाउन्स, she or her, them or they, it, etc. Now we have personal pronouns stand for the three persons. Personal pronoun तीन लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं. The person speaking, right now I am speaking to you. The person who is speaking right now, this is the first person. मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टाइम पे, so I am the person who is speaking. I am the first person. The person spoken to, मैं आपसे बात कर रही हूँ अगर, तो you are the second person. The person spoken of, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट विल बी द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सनल उसको थर्ड पर्सन कहा जाएगा. लुक एट हियर, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग. ये अभी हमने पीछे भी देखा, आई, माई, मी, वी और अस, यानी खुद इंसान जो बात कर रहा है उसके लिए फर्स्ट पर्सन उसको कहा जाता है. एंड सेकेंड पर्सन, द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन विच डिनोट द पर्सन स्पोकन टू. जिस तरह आप किसी से अगर बात कर रहे हैं तो दैट विल बी द सेकेंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन वो होता है विच डिनोट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें लाइक ही, शी, हिम, हर, इट, दे और दैम, दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन. सो पर्सनल प्रोनाउन में ये सारे ही आते हैं. Now we will move towards possessive pronouns. Possessive pronouns is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. This pen is my pen, not your pen. Look at this second example. This pen is mine, not yours. Here mine, this is my laptop, it is mine. मीन्स पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो आपकी ऑनरशिप को शो करते हैं. यानी ये चीज़ अगर मेरी है या आपकी है तो ये हम योर्स, माइन, हर्स, इस तरह के जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस. ये ऑनरशिप को शो करते हैं यानी पोजेशन को शो करते हैं. A pronoun indicating possession, for example, mine, yours, hers or theirs. Look at this example, that is her book. So her is indicating like the ownership of this girl, possession of this girl. यानी ये book इस लड़की की है. This bicycle is mine, this bicycle is mine. So here mine is showing the possession of this boy.
पोजेसिव प्रोनाउन में हम क्या यूज़ करते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स, this is his car, this bag is hers, this house is ours, and this book is theirs, or these books are theirs. Look at this definition, a word that replaces a noun and shows ownership. यानी ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता है और ऑनरशिप यानी पोजेशन को शो करता है. Look at these examples. It is not yours, it is mine now. ये चीज़ आपकी नहीं है, अब ये मेरी हो चुकी है. सो होपफुली आपको समझ आ गई कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. ये ऑनरशिप को शो करते हैं एंड पोजेशन को शो करते हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर, वी यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस विद सिंगुलर दिस. नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ सिंगुलर, एंड दैट इज़ अ far object. We use that for the far objects. Plural में हम क्या यूज़ करते हैं? these, यानी more than one thing, more than one object. We use these and these for near and those for far objects. Look at here, this, that, these, those. They are all demonstrative pronouns. This book, that book, these books and those books. They are here indicating the near object, and here is demonstrating the far object, and both of the object are singular here. And look at here, these are books for the near objects and for the far objects, and both of the objects, they are plural. So these and those we use for the plural objects, and they are called demonstrative pronouns. ये जब हम किसी चीज़ की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. नाउ वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सिंगुलर जो होते हैं वो उनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसके रिफ्लेक्सिव कैसे बनाए जाएंगे? फॉर एग्जांपल, आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ. अगर एक बंदा है, एक इंसान के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए योर सेल्फ यूज़ किया जाएगा. ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ. और अगर ज़्यादा लोग हैं, मोर देन वन पर्सन, प्लूरल, तो उसके रिफ्लेक्सिव नाउन कुछ इस तरह बनेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्व्स, योर सेल्फ. यहाँ पे अगर एक इंसान के लिए यू यूज़ किया जा रहा है तो योर सेल्फ आएगा, और अगर ज़्यादा लोगों के लिए यू यूज़ किया जा रहा है तो योर सेल्व्स आएगा. देन दे, देमसेल्व्स. लुक एट दिस एग्जाम्पल. While calling on the gods, a man should himself lend a hand. Okay, so here is a man is a singular person. So इसके अकॉर्डिंग हम himself यूज़ करेंगे यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर यहाँ पे जो इंसान है वो दो हैं तो हम यहाँ पे लाइक they है तो themselves आएगा, we है तो ourselves आ जाएगा, और you अगर ज़्यादा लोगों के लिए है तो yourselves आ जाएगा. Now moving on, emphatic pronouns or intensive pronouns. इनको emphatic भी कहते हैं और intensive भी कहा जाता है. They show emphasis and are generally used after the pronoun. ये किसी चीज़ को जब emphasize करना होता है, हमने ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है, ज़ोर दे के बात करनी होती है, या जो काम करने वाला इंसान है उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना होता है, उसके ऊपर फोकस करना होता है, तो उसको हम प्रोनाउन के फ़ौरन बाद यूज़ करते हैं. लुक एट दिस एग्जांपल. ही हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज द पिकनिक. ये पिकनिक उसने खुद अरेंज की है. यहाँ खुद पर ज़्यादा जोर है, ज़्यादा एम्फोसिस किया जा रहा है. सो हिमसेल्फ इज़ अ एम्फेटिक प्रोनाउन हियर. शी हर सेल्फ बेक द केक. यहाँ पे देखें शी प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है. लुक एट हियर. इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्स. ये पीछे वाले रूल्स अभी हम देखेंगे कि सिंगुलर के साथ हम SELF लगाते हैं सेल्फ, और प्लूरल के साथ हम सेल्व्स यूज़ करते हैं. Now moving on to interrogative pronouns. Interrogative pronouns mean interrogative से आपको समझ आ जाता है कि question करने के लिए. Interrogative pronouns are used to ask questions. For example, who loves pies, who won yesterday, कौन. For people used as the subject or verb. Who हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं और ये एज अ सब्जेक्ट या एज अ वर्ब यूज़ होता है.
Home, this is also used for people, used as a subject or verb or preposition. ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, वर्ब यूज़ होता है, या एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ किया जाता है. लुक एट हियर, यू सॉ होम, यू वेंट विद होम. यू सॉ होम, आपने किससे देखा. यू वेंट विद होम, आप किसके साथ गए. हुज, फॉर पीपल, यूज फॉर पोजेशन. हुज भी इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है, एंड यूज़ फॉर पोजेशन, ये पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जो अभी हमने देखा पीछे पोजेशन, ये उसके लिए यूज़ किया जाता है. हुज इज़ दिस, ये चीज़ किसकी है. हुज वॉन द मैच को, हुज वॉन द रेस कौन जीता. सो ये यहाँ पे पोजेशन को शो करते हैं. वट, फॉर पीपल, वट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पीपल एंड यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. ओके, वट जो है वो पीपल के लिए यानी इंसानों के लिए भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है. वट इज़ दैट एंड वट डू यू मीन. विच, फॉर पीपल, यूज फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. वट और विच जो है वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. विच इज़ स्मार्टर, विच इज़ फास्टर एंड विच इज़ हैवियर. सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं. हु, होम, हुज, वट एंड विच. नाउ मूविंग टूवर्ड्स relative pronouns. Relative pronouns क्या होते हैं. दे शोज द रिलेशनशिप दैट, विच, हु, होम एंड हुज. हेयर हु, विच, हु, होम, हुज ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही हैं, लेकिन इनकी सेंस यानी यूजेज इनका डिफरेंट होता है. अ प्रोनाउन दैट हेड्स एन एडजेक्टिव क्लॉज. एग्जाम्पल, द डॉग that ate the cake is looking guilty. Here the dog is a noun and that ate the cake is the adjective clause. तो adjective clause में ये यूज़ किया जा रहा है. This is relative pronoun. That, the dog, वो कुत्ता, that ate the cake, जिसने केक खाया. यहाँ पे रिलेशन शो किया जा रहा है with the noun. So this is relative pronoun. Distributive pronouns. The pronouns which refer to person or thing one at a time are called distributive pronouns. For example, either, neither, each. You can drink either tea or coffee. यहाँ पे comparison आ रहा है या choice यहाँ पे पूछी जा रही है, so we will use either. She can neither see TV nor play, and each of us bought the book. Give the sorry. Give the chocolate to each. So here either, neither, each, all these are distributive pronouns. You can drink either tea or coffee. यहाँ पे चॉइस पूछी जा रही है, या तो आप चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी. She can neither see TV nor play. वो ना तो टीवी देख सकती है ना ही प्ले. And each of us bought the book. हम में से हर एक ने किताब खरीदी. गिव द चॉकलेट टू ईच, हर किसी को चॉकलेट दो. सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक. जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली नहीं बता रहे होते कि ये चीज़ किसकी है, तो दे आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज. एवरीथिंग मैंने हर चीज़. आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं है. आई नीड टू फाइंड समथिंग एंड एनीथिंग वुड बी ओके. सो हियर एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग एंड एनीथिंग, दे आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. द इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर वन, सम, none, few, many, all, much, little, any, others, enough, less, each, either, neither, nobody, somebody, everybody, anybody, and it. All these words are indefinite pronouns. So hopefully you get what is the definition of a pronoun. What are pronouns? Pronouns are words which we use in place of a noun, etc. And we discuss its types, its kinds in detail one by one. Take a great care of yourself and have a good day.